Alright, in this video we are going to solve it's your May-June 2021 A-Level Mathematics P1. Course code is 9709 and variant is 13. So let's start. Number 1, a curve with the equation y equals to f of x is such that f prime of x is equals to 6x square minus 8 over x square. It is given that the curve passes through the point 2, 7, find f of x. तो आपके पास अगर derivative part given है, that means we need to integrate the function. So what is the derivative part we have? It's f prime of x is equals to 6x square minus 8x to the power minus 2. Alright, after that I need to apply integration on both sides. So the integral of 6x square, it will be 6x cube divided by 3 minus 8x to the power minus 1 divided by minus 1 plus c is equals to y. आपको एक कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 2, 7 टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c. तो मैं पहले इसको सिंप्लीफाई करता हूँ. दैट विल बी 2x क्यूब माइनस माइनस प्लस 8 डिवाइडेड बाय x प्लस c इज इक्वल्स टू y. एंड द पॉइंट इज 2, 7. तो जहाँ पर भी x होगा वहाँ पे 2 आ जाएगा, जहाँ y वहाँ 7. सो 7 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स x पावर क्यूब प्लस 8 डिवाइडेड बाय x इज 2 and plus c. 7 is equals to 2 cube, 8 2s are 16 plus 2 1s are 2, 2 4s are 8, 4 plus c. 16 plus 4 27 minus 20 is equals to 3 c, so c is equals to negative 13. And now the equation of curve, it will be y is equals to 2x cube plus 8 divided by x minus 13, and that is your answer. Question number 2, the function f is defined by f of x is 1 over 3 times 2x minus 1 to the power 3 upon 2 minus 2x for x is greater than half and lesser than a. It is given that f is a decreasing function. Find the maximum possible value of the constant a. Alright. Firstly, we need to derivate the function. So the f of x we have, it is equals to 1 over 3 2x minus 1 to the power 3 over 2 minus 2x, right? जब आप इसको डेरिवेट करेंगे f prime of x is equals to 1 over 3 as it is. Now first we need to write down the power, then subtract 1 from the power. So 3 upon 2 minus 1 is equals to 1 upon 2, right? That will be 1 upon 2, and then derivative of the function, the derivative of 2x minus 1, it will be 2. Alright, and the derivative of minus 2x is will be minus 2. सिंप्लीफाई करते हैं इसको. 3 और 3 कैंसिल हो गया हमारे पास, 2 और 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या? नाउ इट विल बी 2x माइनस 1 टू द पावर 1 ओवर 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू f प्राइम ऑफ x. फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन क्या करेंगे हम लोग? इट सेज f प्राइम ऑफ x शुड बी लेसर देन 0. दैट इज द कंडीशन फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन. आपके पास क्या आया था? 2x माइनस 1 टू द पावर 1 ओवर 2 माइनस 2 लेसर देन 0. 2x माइनस 1 टू द पावर 1 अपॉन 2 नेगेटिव 2 आ गया, पॉजिटिव 2. आपको 1 अपॉन 2 ख़त्म करना है. यू नीड टू अप्लाई स्क्वायर ऑन बोथ साइड. ये आपके पास आया 2x माइनस 1 लेसर देन 4, 2x लेसर देन 5 एंड x लेसर देन 5 डिवाइडेड बाय 2. तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है x इज लेसर देन a. इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे, सो यू गॉट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 5 over 2. क्वेश्चन नंबर 3, अ लाइन विद इक्वेशन y इक्वल्स टू mx minus 6 is tangent to the curve with the equation y equals to x square minus 4x plus 3. Find the possible value of the constant m and the corresponding coordinate of the point at which the line touches the curve. Alright. Since the condition is about the tangent, क्या कंडीशन होती है टेंजेंट की हमारे पास? इट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0. ऑलराइट. आपके पास दो इक्वेशन है y की. एक y बराबर है mx माइनस 6 के और एक y बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के. दोनों y को हम इक्वेट करेंगे. सो वी गॉट mx माइनस 6 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3. ऑलराइट. सिंप्लीफाई करते हैं इसको. एक्स स्क्वायर अपनी जगह, माइनस 4x अपनी जगह. जब ये प्लस का mx राइट पे जाएगा, दैट विल बी माइनस mx प्लस 3 अपनी जगह. जब ये माइनस 6 राइट पे जाएगा, दैट विल बी प्लस 6 एंड ऑन द लेफ्ट साइड वी हैव 0. सो नाउ वी गॉट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस, इनमें से मैंने x को कॉमन लिया. इनसाइड द ब्रैकेट वी हैव माइनस 4 माइनस m प्लस 9. ऑलराइट. a b और c की वैल्यू असाइन करेंगे. a आपके पास 1 आ गया,
बी आपके पास -4 माइनस एम आ गया, सी आपके पास 9 आ गया। कंडीशन ऊपर लिखी हुई है मैंने, बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल्स टू 0। बी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, दैट विल बी -4 माइनस एम होल स्क्वायर -4 टाइम्स a इज 1, c इज 9 इज इक्वल्स टू 0। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट विल बी a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। जब दोनों साइन आपके नेगेटिव हों तो आइडेंटिटी पॉजिटिव की होती है। -4 9s are 36 इक्वल्स टू 0। So we got m square plus 8m minus 16 minus 36 20 is equals to 0. So the middle term will be plus 8m minus 2m minus 20 is equals to 0. m plus 10 minus 2 m plus 10 is equals to 0. We got m plus 10 is equals to 0 and we got m minus 2 is equals to 0. So the values of m is m equals to -10 and m equals to 2. अब ये तो आपके पास यहाँ तक का आंसर आ गया, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m। अब क्या कह रहे हैं, करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एट विच द लाइन टचेज द कर्व। आपके पास इक्वेशन क्या है, आपके पास जो पहली इक्वेशन है y इक्वल्स टू mx माइनस 6, तो इसकी दो इक्वेशन बन जाएगी। y इज इक्वल्स टू m की जगह आ जाएगा -10, x माइनस 6 ये भी बन सकती है, और y इज इक्वल्स टू m की जगह आ जाएगा 2 एंड देन x माइनस 6। जो आपकी सेकेंड इक्वेशन है वो सेम है, दैट इज y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। सेम यहाँ पर भी लिख रहा हूँ, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब ये दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियस सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँ बीच में ताकि ये दोनों अलग हों, वो दोनों अलग हो जाएं। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, दोनों y को इक्वेट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 is equals to -10x minus 6, x square plus 6x plus 9 is equals to 0, x square plus 3x plus 9 is equals to 0, x plus 3 plus 3 x plus 3 is equals to 0। तो आपके पास x का आंसर आ जाएगा -3। ऑलराइट, इसी तरह आप इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, यहाँ भी दोनों तरफ y को इक्वेट करेंगे तो आपकी इक्वेशन बनेगी 2x माइनस 6 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6x प्लस 3 प्लस 6 प्लस 9 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, x माइनस 3 माइनस 3 x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर x का आंसर आ जाएगा आपके पास 3। तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब आप y निकालेंगे, y इज इक्वल्स टू, ये वाली इक्वेशन को यूज़ कर रहे हैं, y इज इक्वल्स टू -10x माइनस 6, और x की जगह किसकी वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू क्या है मेरे पास, -3। तो y क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 30 माइनस 6 24। सेम यही काम करेंगे सेकेंड सेट के लिए, तो y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 6 और x की जगह आ जाएगा हमारे पास 3। सो y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 6 0। अब आपका फाइनल आंसर कैसे लिखा जाएगा, फाइनल आंसर आएगा जब x माइनस 3 है तो y 24, ये एक पॉइंट आ गया, जब x 3 है तो y 0। ये आपके दोनों आंसर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 4, 10x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 10x माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू k, where k is a constant may be expressed as 1 plus cos x divided by 1 minus sin cos x। ऑलराइट, इसको सॉल्व करना है हमने, ठीक है। आपके पास क्या लिखा हुआ है, 10x, मैं 10 की जगह लिखूंगा sin x डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x। ऑलराइट, पहले हम खाली न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हमने न्यूमरेटर को सॉल्व किया तो ये आ जाएगा sin x प्लस cos x sin x डिवाइडेड बाय cos x। ये मेरा सॉल्व हो गया, न्यूमरेटर यहाँ लिख दिया मैंने n। अब हम सॉल्व करते हैं डिनोमिनेटर को, ठीक है। डिनोमिनेटर क्या है मेरे पास, 10x माइनस साइन एक्स। यहाँ भी वही काम करेंगे, 10 क्या हो जाएगा मेरे पास, साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। एलसीएम ले लिया आपने, दैट इज कॉस एक्स, ऊपर आ जाएगा साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। ऑलराइट, अब इन दोनों को, ये मेरा न्यूमरेटर है और ये मेरा डिनोमिनेटर है, ठीक है।
अब पहले हम लिखते हैं न्यूमरेटर में साइन एक्स को कॉमन ले लेते हैं। साइन एक्स बचेगा क्या आपके पास 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स डिवाइडेड बाय, अब मेरा आएगा डिनोमिनेटर वाला पार्ट, उसमें मैंने यहाँ पर साइन एक्स को कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। जब मैंने साइन एक्स को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। कैंसिलेशन करते हैं, कॉस एक्स किया, साइन एक्स किया, तो आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस एक्स। यही तो आपको प्रूफ करना था, यही तो आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट इट सेज एक्सप्रेस कॉस एक्स इन टर्म्स ऑफ के। ऑलराइट, आपके पास एक्सप्रेशन क्या है जो दिया हुआ है, इट्स 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू के। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो वी गॉट 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू के माइनस के कॉस एक्स। कॉस एक्स को एक तरफ ले आते हैं तो ये वाला हम शिफ्ट करते हैं लेफ्ट पर, तो ये आएगा कॉस एक्स प्लस के कॉस एक्स इज इक्वल्स टू के, ये +1 आपका राइट पे जाएगा, दैट विल बी -1। यहाँ पर कॉस एक्स को आपने कॉमन ले लिया, व्हाट इज लेफ्ट ओवर 1 प्लस के इज इक्वल्स टू के -1। फाइनल आंसर क्या आएगा, कॉस एक्स इज इक्वल्स टू के -1 डिवाइडेड बाय के +1। ये आपका आंसर आ गया। और थर्ड पार्ट इट सेज सॉल्व द इक्वेशन tan x प्लस sin x डिवाइडेड बाय tan x माइनस sin x इक्वल्स टू 4। अब अगर मैं अपनी इस इक्वेशन को कंपेयर करूं पहली इक्वेशन से, तो tan x प्लस sin x डिवाइडेड बाय tan x माइनस sin x, ये चीज़ एज इट इज़ ऐसी लिखी है, ठीक है। और अगर मैं 4 को देखूं तो 4 बेसिकली मेरे पास k की वैल्यू है। ऑलराइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब आपके पास जो cos x का एक्सप्रेशन आप निकाल चुके हो, cos x इज इक्वल्स टू दिस वन, k -1 अपॉन k +1। अब यहाँ पर आपने k की जगह क्या प्लेस करना है, k की जगह आपने 4 प्लेस करना है। सो cos x इज इक्वल्स टू 4 - 1 3 डिवाइडेड बाय 4 + 1 5, ठीक है। आपको रेंज कहाँ से कहाँ तक दी है, -π से लेके +π तक। पहले हम cos के कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं। cos अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हुआ कि कोऑर्डिनेट या तो फर्स्ट होगा या फिर कोऑर्डिनेट फोर्थ होगा, ठीक है। अब हम निकालते हैं अल्फा। मेक श्योर कि आपका कैलकुलेटर यहाँ पर रेडियन मोड पर होना चाहिए, ठीक है। 3/5 एंड देन उसका 3 डिवाइडेड बाय 5 का cos इनवर्स, इट्स 0.927, तो अल्फा इज इक्वल्स टू 0.927 रेडियन। ऑलराइट, ठीक है। अब आपके पास पॉजिटिव में रेंज कितनी है, पाई तक है, और नेगेटिव में भी -π। तो मैं दो डिफरेंट आपके लिए ग्राफ बनाता हूँ। एक हम ले लेते हैं पॉजिटिव पाई को ले लेते हैं, ठीक है, और एक हम ले लेते हैं नेगेटिव पाई को। आपके क्वाड्रेंट कौन कौन से हैं भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी जाना है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी जाना है, ठीक है। अब अगर हम पहले क्वाड्रेंट की बात करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, ये मेरे पास मेरा थीटा आ जाएगा, और फोर्थ वाले में मेरे पास इस डायरेक्शन में मेरा थीटा आ जाएगा। ऑलराइट, तो आपके पास जो आंसर्स होंगे, दो आंसर्स आएंगे आपके पास थीटा के। जब पहला क्वाड्रेंट होगा तो थीटा हो जाएगा 0.927, और जब फाइनल क्वाड्रेंट होगा तो थीटा आएगा -0.927। तो आपके पास थीटा के आंसर्स क्या आ गए, थीटा इज इक्वल्स टू ±0.927 रेडियन। ये आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, द डायग्राम शोज अ ट्राइंगल ABC in which angle ABC is 90. AB is 4. The sector ABD is a part of a circle with center A. The area of the sector is 10 centimeter square. तो आपके पास इसका एरिया आ चुका है, ठीक है। फाइंड एंगल BAD। ऑलराइट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपके पास एंगल निकालना है। फाइंड एंगल BAD, लेट्स सपोज दिस एंगल इज x। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज 1/2 r स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आ गया। एरिया आपको दिया हुआ है 10, 1/2 अपनी जगह, रेडियस इज 4 स्क्वायर एंड थीटा इज अननोन, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल्स टू थीटा, एंड थीटा इज इक्वल्स टू 4 5s are 20, 4 4s are 16, 5/4 रेडियन। दैट इज योर आंसर। 5 कर देंगे इसको, सो दैट विल बी 1.25 रेडियंस। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। पेरीमीटर में आप पहले बाउंड्रीज को हाईलाइट करो, कौन कौन सी आपको लेंथ की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। पेरीमीटर में मुझे लेंथ ऑफ B एंड D चाहिए होगी। ऑलराइट,
मुझे लेंथ ऑफ बी एंड सी भी चाहिए होगी और मुझे लेंथ ऑफ डी सी चाहिए होगी। ये 3 लेंथ मेरे पास होंगी तो मैं इसका पेरीमीटर निकाल सकता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बी एंड डी। बी डी मेरे पास आर्क लेंथ है, वर्किंग फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, एस इज इक्वल्स टू आर थीटा। एस मुझे निकालना है, रेडियस मेरे पास 4 है, थीटा मैं निकाल चुका हूँ, 5 डिवाइडेड बाय 4, सो दैट इज इक्वल्स टू 5, यूनिट इज सेंटीमीटर। तो मेरे पास बी और डी की लेंथ आ चुकी है। अब हम बात करते हैं बी और सी की लेंथ के बारे में। बी और सी को अगर आप देखो तो आपके पास एक ट्राइंगल बन रहा है, ये पूरा एक ट्राइंगल बन रहा है बेटा, ठीक है। उस ट्राइंगल में आपको ये एंगल भी पता है और आपको ये साइड भी पता है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम tan थीटा इज 5/4 रेडियन इज इक्वल्स टू अपोजिट इज बी एंड सी जो हमें चाहिए डिवाइडेड बाय एडजेसेंट इज 4। tan 5/4 it's 3 times 3 is equals to BC divided by 4 and the value of BC is 12। ये आपके पास BC की लेंथ आ गई। अब आपके पास लेंथ बची है DC की, ऑलराइट। अब DC की लेंथ निकालने के लिए पहला काम मुझे करना पड़ेगा कि A और C की लेंथ निकालनी पड़ेगी, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमें AC को निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे AC को? बहुत सिंपल है, हम cos को अप्लाई करेंगे। cos एंगल इज 5/4 रेडियन is equals to adjacent is 4 and hypotenuse is the length of AC. Alright, so cos 5/4 आपके पास कितना आया? That is 0.31. So 0.315 is equals to 4 divided by AC and AC is equals to 4 divided by 0.315 is 12.7. ऑलराइट, आपके पास AC आ गया। अब AC से आपको CD निकालना, तो क्या करेंगे? सिंपल, ये AD की लेंथ को माइनस करेंगे। सो CD इज इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ AC 12.7। इसमें से आपने माइनस करना है 4 को, क्योंकि 4 आपके पास ये AD की वैल्यू रेडियस। सो 12.7 माइनस 4 इट्स 8.7। सो CD इज इक्वल्स टू 8.7 सेंटीमीटर, राइट। व्हाट इज पेरीमीटर? पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स। आपके पास सारी साइड आ चुकी हैं। 5 + 12 + 8.7 इज इक्वल्स टू 25.7 सेंटीमीटर। दैट इज योर पेरीमीटर। Question number 6. Functions f of x and g of x are defined by first expressing each f of x and g of x in completed square. Express g of x in the form of f of x plus p plus q where p and q are constant. Alright. पहले हम इसको कंप्लीट स्क्वायर पे लेकर आते हैं। स्टार्ट करते हैं f of x से। f of x क्या है मेरे पास? इट्स x स्क्वायर 2x + 5। अब जब आपने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में करना है तो आपने कोफिशिएंट ऑफ x पिक करना है। मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? इट्स -2। जो भी कोफिशिएंट ऑफ x होगा डिवाइडेड बाय 2 किया आपने, आंसर आ गया -1। जो आंसर आएगा उसको हम स्क्वायर करेंगे और उसको हमें ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम यहाँ पे +1 और -1 को ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि अब आपके पास ये बन गई आइडेंटिटी, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा, इट विल बी x - 1 होल स्क्वायर। जो बचा आपके पास दैट इज -1 + 5 इट इज इक्वल्स टू +4। तो ये तो आपके पास आ गया f ऑफ x का कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसी तरह हम g ऑफ x के लिए वर्किंग करेंगे। g ऑफ x क्या है हमारे पास? इट इज x स्क्वायर + 4x + 13। अब अगर हम यहाँ पर कोफिशिएंट को देखें तो ये हमारे पास 4 होगा। 4 को आपने 2 से डिवाइड किया, आंसर आया 2। स्क्वायर किया, ये हो जाएगा 4। तो आपको +4 भी करना है और आपको -4 भी करना है, ठीक है। अब ये आइडेंटिटी क्या बन जाएगी? इट इज x + 2 होल स्क्वायर प्लस ये दो नंबर्स का सम क्या हो जाएगा? 13 - 4 इट्स 9। तो ये मेरे पास आ गया g ऑफ x। अब जो इसके बाद वाली बात है, एक्सप्रेस g ऑफ x इन द फॉर्म ऑफ f ऑफ x + p। क्या कह रहे हैं? आपने g ऑफ x को सिंप्लीफाई करना है f ऑफ x + p एंड + q। कैसे करेंगे? आप ज़रा ऑब्जर्व कीजिएगा। देखें, ऑफ x ही रहेगा, उसका फंक्शन इंसर्ट कर रहे हैं x स्क्वायर + 4x + 13। f ऑफ x में जहाँ पर x था वहाँ पर आ जाएगा x + p, तो ये आ जाएगा x + p होल स्क्वायर -2 टाइम्स x + p + 5 एंड देन + q अपनी जगह। ऑलराइट, मैंने क्या किया? मैंने पूरे फंक्शन ऑफ x में जहाँ पर भी x था वहाँ पर x + p प्लेस कर दिया और अब मैं इन दोनों को इक्वेट करूँगा, लेकिन उससे पहले सॉल्व कर लूँ। आइडेंटिटी एक्सपेंड करी, x स्क्वायर + 2px + p स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व किया आपने, 2x - 2p + 5 + q
थोड़ा अरेंज कर लेते हैं इसको। एक्स स्क्वायर अपनी जगह, किस किसके पास एक्स है, यहाँ पर एक्स नज़र आ रहा है और यहाँ पर एक्स नज़र आ रहा है। इन दोनों में से एक्स को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा मेरे पास 2p माइनस 2। जिनके पास एक्स नहीं है वो कौन है, वो है मेरे पास पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 5 प्लस क्यू। लेफ्ट साइड पे कौन कौन था, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13। ऑलराइट, अब जरा करते हैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट। x के साथ कौन कौन है, यहाँ पर x के साथ है 4 और यहाँ पर x के साथ है 2p माइनस 2, दोनों को इक्वेट कर लेंगे। ठीक है, तो यह आ जाएगा 4 इज इक्वल्स टू 2p माइनस 2, 2p इज इक्वल्स टू 6 एंड p इज इक्वल्स टू 3। ये तो p का आंसर आ गया। जिनके पास x नहीं है वो कौन कौन है, राइट साइड पे जिनके पास x नहीं है वो आपके पास है 13, और लेफ्ट राइट पे किसके पास नहीं है x, इन सब के पास x नहीं है। तो अब हम इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा मेरे पास 13 इज इक्वल्स टू p की जगह p की वैल्यू बेटा 3 स्क्वायर माइनस 2 3 6 प्लस 5 प्लस q, तो ये आ जाएगा 13 इज इक्वल्स टू 9 माइनस 6 प्लस 5 प्लस q। 9 माइनस 6 3 प्लस 5 8, 13 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 5 इज इक्वल्स टू q। ये आपका आंसर आ गया। पुट कर देंगे वैल्यूज जो आपके फंक्शन में कहा हुआ है। तो g ऑफ x मेरे पास आ जाएगा f ऑफ x प्लस p की जगह 3 आ जाएगा और q की जगह 5 आ जाएगा। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब फुली द ट्रांसफॉर्मेशन विच ट्रांसफॉर्म द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू f ऑफ x टू द ग्राफ y इक्वल्स टू g ऑफ x। ऑलराइट, तो बेसिकली जो आपकी इक्वेशन है बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपके पास जो g ऑफ x का ग्राफ है वो बेसिकली क्या हो रहा है, दैट इज f ऑफ x प्लस 3 एंड देन प्लस 5। इस प्लस 3 ने आपको क्या बताया, इस प्लस 3 ने बताया ये आपके पास हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन है। ठीक है, अब चूंकि माइनस 3 है तो ये हो जाएगा मेरे पास नेगेटिव 3, सॉरी प्लस 3 है तो माइनस 3 हो जाएगा। 5 ने क्या बताया, 5 ने आपको बताया ये वर्टिकल शिफ्ट हुआ है पॉजिटिव 5 का। ठीक है, तो जो आपके पास ट्रांसलेशन वेक्टर बनेगा इसका वो क्या बनने वाला है, x पर आएगा -3 और y पर आएगा 5। ये ट्रांसलेशन हुई है, तो आप कह सकते हैं इट इज़ अ ट्रांसलेशन ऑफ -3 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 7, राइट डाउन द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन इन असेंडिंग पावर ऑफ x। So first term is a to the power x plus n combination 1, a to the power n minus 1 5, b to the power 1। तो b के आपके पास इट्स x और चूंकि माइनस का साइन लगा हुआ है तो ये टर्म माइनस में हो जाएगी, प्लस 6 कॉम्बिनेशन 2, a to the power 6 minus 2 4 एंड b to the power स्क्वायर प्लस 6 कॉम्बिनेशन 3, a to the power 6 minus 3 एंड b टू द पावर 3। और अगेन यहाँ पर जो साइन होगा आपके पास इट विल बी नेगेटिव। फर्स्ट 4 टर्म्स हो गई, इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे अब। सो दैट इज इक्वल्स टू a टू द पावर 6 माइनस 6 कॉम्बिनेशन 1 6 a 5x प्लस 6 कॉम्बिनेशन 2 इज 15 a 4x स्क्वायर माइनस 20 a क्यूब x क्यूब एंड द सीरीज चलती रहेगी, लेकिन हमें खाली फर्स्ट 4 टर्म्स चाहिए थी। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट वन, given that the coefficient of x square in the expansion of these two is -20, find in exact form the possible value of the constant a। alright, आपके पास दो टर्म्स क्या हैं, जरा उनको लिख देते पहले हम। 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई ax ब्रैकेट a माइनस 6x को ऊपर एक्सपेंड कर चुके, मैं वही आंसर यूज कर रहा हूँ। a टू द पावर 6 माइनस 6 a 5x प्लस 15 a 4x स्क्वायर माइनस 20 a क्यूब x क्यूब प्लस स्टिल गोज ऑन। आपको किस पे फोकस करना है, आपको फोकस करना है भाई x के स्क्वायर पे। अब देखें x स्क्वायर कब कब मिलेगा, उसको हम जरा टारगेट करते हैं। अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई कराऊं किससे, 15a 4x स्क्वायर, मुझे x स्क्वायर मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक, दूसरी चीज, अगर मैं 2/ax को मल्टीप्लाई कराऊं -20 a क्यूब x क्यूब से, क्योंकि डिवाइड में x है ना, डिवाइड में x है तो एक x को कैंसिल कर देगा। इसके अलावा मुझे x स्क्वायर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब जिनको मैंने हाईलाइट किया उनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा। 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 15a 4x स्क्वायर से प्लस 2/ax मल्टीप्लाई हो जाएगा -20 a क्यूब x क्यूब से।
अगर इनको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये x जब कैंसिल होगा तो स्क्वायर बच जाएगा, और कोफिशिएंट बराबर किसके हैं, -20। किसका कोफिशिएंट है, ये एक्स स्क्वायर का है। तो अब तीनों साइड पर एक्स स्क्वायर कैंसिल करते हैं। अब क्या बचा मेरे पास, 15a4 माइनस 40a³ इज इक्वल्स टू -20 डिवाइडेड बाय a। ये वाला a एक बचा हुआ है, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा। आपकी इक्वेशन क्या आ गई, 15a4 माइनस 40a स्क्वायर इक्वल्स टू -20। -20 को शिफ्ट करेंगे तो ये आएगा 15a4 माइनस 40a स्क्वायर प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन में 5 से डिवाइड हो रही है तो पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड बाय 5 कर देंगे। तो अब क्या बनेगी, 3a4 माइनस 8a स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। मेरे टर्म ब्रेक करते हैं, 4 3 एंड 6 2 हो जाएगा। तो 3a4 माइनस 6a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। कॉमन ले लिया आपने, कॉमन आ जाएगा 3a स्क्वायर। क्या बचा, a स्क्वायर -2 कॉमन आ गया, क्या बचेगा, a स्क्वायर -2 इक्वल्स टू 0। So you got 3a square minus 2 is equals to 0, and you got a square minus 2 equals to 0. So a square equals to 2 divided by 3 and a square equals to 2. Apply root on both sides. यहाँ भी रूट अप्लाई कर दिया, यहाँ भी रूट अप्लाई कर दिया। So a is equals to plus minus under root 2 and plus minus अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 3, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम द टॉपिक फंक्शंस। एफ ऑफ एक्स पता है, जी ऑफ एक्स पता है, सॉल्व द इक्वेशन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3। फंक्शन किसका होगा, फंक्शन एफ का होगा। फंक्शन क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और एक्स की जगह कौन आएगा, जी ऑफ एक्स आएगा। दैट मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1। ये किसके बराबर है, ये बराबर है आपके पास 3 के। -1 शिफ्ट कर दिया वहां पर, तो ये हो जाएगा मेरे पास 4। 1 divided by 2x plus 1 whole square. Alright, स्क्वायर को खत्म करना पड़ेगा, we need to apply root on both sides. Alright, so now it will be 1 divided by 2x plus 1 is equals to plus minus 2. सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये आ जाएगा मेरे पास, अगर पॉजिटिव लूंगा तो 1 divided by 2x plus 1 is equals to 2 and 1 divided by 2x plus 1 is equals to minus 2. सिंप्लीफाई किया हमने तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 2 2 जार 4x प्लस 2। 2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 इट्स -1 इज इक्वल्स टू 4x। x इज इक्वल्स टू -1 डिवाइडेड बाय 4, पहला आंसर। वहाँ भी सॉल्व करते हैं, 1 इज इक्वल्स टू -4x माइनस 2, -2 इधर आएगा तो 1 प्लस 2 इट विल बी 3 इज इक्वल्स टू -4x एंड -3 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू x। ये आपके दो आंसर्स आ गए, लेकिन जो फाइनल आंसर होगा वो आपके पास होगा -3/4। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आपके पास डोमेन क्या दिया है, x शुड बी लेसर देन -1/2। ऑलराइट, x शुड बी लेसर देन -1/2, इसीलिए आपके पास ये आंसर कंसीडर किया जाएगा। इसको हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि ये आपके पास ग्रेटर देन -1/2 है। पार्ट बी इट सेज फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर f ऑफ g एंड इट्स होल इनवर्स। राइट, तो पहले तो हमें निकालना होगा f ऑफ g ऑफ x, so that will be equals to फंक्शन f का आएगा, it's x स्क्वायर -1 और g की जगह x की जगह आ जाएगा 1/2x प्लस 1। ऑलराइट, सो मेरे पास f ऑफ g ऑफ x का आंसर आ रहा है 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 होल स्क्वायर -1। ऑलराइट, अब ये पूरा मेरा बन गया y बन गया, ठीक है। y इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 होल स्क्वायर -1। अब इसका इन्वर्स निकालते हैं। So first step, y plus 1 is equals to 1 divided by 2x plus 1 whole square. 2x plus 1 whole square is equals to 1 divided by y plus 1. Apply root on both sides. So that will be equals to 2x plus 1 is equals to plus minus with the root sign of 1 divided by y plus 1. x को बनाएंगे सब्जेक्ट तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाय y प्लस 1 -1 एंड फाइनली x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट
1 divided by y plus 1, not y, it will be x कर देते हैं हम इसको यहाँ पर, ठीक है, x प्लस 1 माइनस 1 अपनी जगह, और ये 2 आके डिवाइड हो जाएगा। तो दोनों से डिवाइड होगा तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 2 यहाँ भी लिख देता हूँ और मैं 2 यहाँ भी कर देता हूँ, ठीक है ना। ये वाला 2 आके डिवाइड हो गया। और लास्ट स्टेप क्या होता है कि जहाँ पर x है वहाँ पर आप उसका इन्वर्स लिखोगे। आपको फाइंड करना है f ऑफ g इन्वर्स, तो मैं सिंपल अब ये करूँगा कि x की जगह लिख दूंगा f ऑफ g इन्वर्स ऑफ x। और अब जो आपका फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी f ऑफ g इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू नेगेटिव अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, 2 मल्टीप्लाई होगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। माइनस का लेने की वजह अगेन वही रीजन कि हमारे पास x लेसर देन माइनस 1/2 होगा, तो प्लस वाले को हम छोड़ देंगे, नेगेटिव वाले को हम कंसिडर करेंगे। Question number 9, our geometric progression is such that the second term is equals to 24% of the sum to infinity. Find the possible values of the common ratio. All right. Given क्या है? Given है आपके पास the second term is 24% of sum to infinity. ये आपकी कंडीशन आ गई, ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, सेकंड टर्म क्या होती है? सेकंड टर्म होती है AR is equals to 24% means 24 divided by 100 टाइम्स एस इन्फिनिटी क्या होता है? a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ऑलराइट, दोनों साइड पर a और a कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे पास a की अननोन है दैट इज r, सो फर्स्टली इट विल बी r इज इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाय 100 टाइम्स 1 माइनस r। सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग, 4 6 are 24, 4 25 are 100. All right. So now it will be 25r into 1 minus r is equals to 6. 25r minus 25r square equals to 6. इक्वेशन बनाते हैं इसको, सबको शिफ्ट कर रहा हूँ राइट साइड पर। 25r square minus 25r plus 6 equals to 0. मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, 25 6 are 150, तो ये आ रहेगा 25r स्क्वायर माइनस 15r माइनस 10r प्लस 6 इक्वल टू 0। कॉमन ले लिया आपने 5r, क्या बचेगा? 5r माइनस 3। कॉमन लिया आपने माइनस 2, क्या बचेगा? 5r माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई किया आपने तो 5r माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड 5r माइनस 3 इक्वल्स टू 0. So the possible values are 2 over 5 and 3 over 5. ये आपका आंसर। Part B. It says an arithmetic progression P has the first term A and the common difference D. An arithmetic progression Q has the first term 2 times A plus 1 and the common difference D plus 1. It is given that fifth term of P divided by 12th term of Q equals to 1 over 3. सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म, सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म इज 2/3। ऑलराइट, तो हम दो सीक्वेंस बना के चलते हैं। हम p को अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है जी, और हम q के लिए अलग सॉल्यूशन करते हैं। अब p के लिए हमें निकालना है फिफ्थ टर्म, तो p के लिए मुझे a क्या दिया हुआ है? a दिया हुआ है मुझे a और d दिया हुआ है मुझे d। तो जो मेरे पास फिफ्थ टर्म होगी p के लिए, तो मैं कहूँगा t5, फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1d, तो ये हो जाएगा a प्लस 4d। ऑलराइट, इसी तरह Q की अगर हम बात करते हैं, A क्या दिया है मुझे? A दिया हुआ है 2 टाइम्स 2A प्लस 2 कर देते हैं इसको, ठीक है, और D मुझे दिया हुआ है D प्लस 1। अब आपको निकालना है 12 टर्म ना, तो T12 क्या हो जाएगा? A प्लस n माइनस 1D, तो 2A प्लस 2A प्लस n माइनस 1 मतलब कितना हो जाएगा? 11 टाइम्स D क्या है? D प्लस 1। सिंप्लीफाई करेंगे 2A प्लस 2 प्लस 11D प्लस 11, और सिंप्लीफाई हो सकता है 2a प्लस 11d प्लस 13। ये मेरे पास आ गया 12 टर्म ऑफ Q। ऑलराइट, इसी तरह हम सम निकालते हैं। अगर हम P का सम देखते हैं, सम ऑफ 5 टर्म्स इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है n/2। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर, Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला है, ठीक है। S5 क्या हो जाएगा? n/2, इट मीन्स 5/2, 2a रहेगा प्लस n माइनस 1, 5 माइनस 1, 4 टाइम्स d। ऑलराइट, सिंप्लीफाई मजीद कर सकता हूँ उसको मैं, तो ये हो जाएगा 5, 2 कॉमन निकाल लिया इनमें से, तो ये आएगा a प्लस 2d और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये मेरे पास सम ऑफ 5 टर्म्स आ गया ऑफ सीक्वेंस P।
इसी तरह जब मैं सम निकालूंगा सीक्वेंस क्यू का कौन सा है मेरे पास, सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स, तो ये भी वही बनेगा आपके पास 5 डिवाइडेड बाई 2a, यहाँ पर a क्या है मेरे पास, a है 2a प्लस 2a प्लस n-1 मतलब 4 और d कितना है, d प्लस 1। अब मैं इस पूरी इक्वेशन से सिंप्लीफाई करने के लिए 2 कॉमन काट देता हूँ, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक। तो जब मैंने 2 कॉमन लिया तो बाहर वाला तो 5/2 एज इट इज़ है, ठीक है। 2 मैं दोनों से कॉमन ले चुका हूँ, अब अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 2a प्लस 2, ये 4 नहीं होगा, फिर 2 हो चुका होगा तो 2d प्लस 2 ये बनेगा, ठीक है। फ़ायदा ये हुआ, 2 और 2 कैंसिल हो गया। अब बाहर क्या आया मेरे पास 5 और अंदर क्या बचा 2a प्लस 2d प्लस 4, सिंप्लीफाई किया 10a प्लस 10d प्लस 20 इज इक्वल्स टू S5Q। सारी चीज़ें मेरे पास आ चुकी हैं। अब आते हैं कंडीशंस के ऊपर। पहली कंडीशन मेरे पास थी टर्म की ना, तो मेरे पास फिफ्थ टर्म क्या आ रही है, फिफ्थ टर्म आ रही है मेरे पास a प्लस 4d डिवाइडेड बाय 12 टर्म क्या आ रही है मेरे पास, 12 टर्म आ रही है 2a प्लस 11d प्लस 13 और ये किसके बराबर है, ये बराबर है 1/3 के। सिंप्लीफाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको, ये आ रहेगा 3a प्लस 12d इज इक्वल्स टू 2a प्लस 11d प्लस 13। मजीद सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। कैसे, 2a वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3a माइनस 2a a प्लस 12 माइनस 11 इट्स d इज इक्वल्स टू 13। ये मेरे पास मेरी पहली इक्वेशन आ गई। इसी तरह हम लोग अब सम को यूज़ करते हैं। सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स का सम क्या आया मेरे पास, इट्स 5a प्लस 10d। ऑलराइट, ये मेरे पास सम आया था ना, इसको मैंने लिख दिया यहाँ पर मल्टीप्लाई करके, डिवाइडेड बाय सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स। अच्छा, दोनों में 5 चूंकि कॉमन है तो हम एक काम करते हैं कि हम यहाँ पर 5 को मल्टीप्लाई नहीं करते, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 5 टाइम्स ऑफ a प्लस 2d डिवाइडेड बाय q का सम क्या था मेरे पास, ये आया था 5 टाइम्स ऑफ 2a प्लस 2d प्लस 4 और ये किसके बराबर है, ये बराबर है 2/3 के। कैंसिल कर दिया मैंने, अब मेरे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये आएगा 3a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 4a प्लस 4d प्लस 8। ऑलराइट, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4a माइनस 3a इट्स a, 4d माइनस 6d इट्स नेगेटिव 2d और प्लस 8 मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर -8, दैट इज माई सेकेंड इक्वेशन। ऑलराइट, दोनों इक्वेशन आ चुकी हैं मेरे पास, मैं सिंपली दोनों को ऐड कर लूँगा। तो पहली इक्वेशन क्या थी, a प्लस d इज इक्वल्स टू 13। दूसरी इक्वेशन क्या आई है, a माइनस 2d इज इक्वल्स टू -8। साइन चेंज करने पड़ेंगे साइमल्टेनियस के लिए हम लोगों को, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया। फ़ायदा a और a कैंसिल हो गया, d प्लस 2d बचा आपके पास 3d इज इक्वल्स टू 13 प्लस 8 इट्स 21। यू गॉट द वैल्यू ऑफ d इट्स 7। इस d की वैल्यू को मैं अपनी इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा a प्लस 7 इज इक्वल्स टू 13 एंड a इज इक्वल्स टू 6। ये आपके आंसर्स आ गए a के और b के। ऑलराइट, इट्स क्वेश्चन नंबर 10। पॉइंट a, b एंड c lie on the circumference of a circle with center d। तो d आपका सेंटर है। शो दैट abc इज 90। अगर abc को 90 शो करना है तो ग्रेडियंट की कंडीशन अप्लाई करेंगे। पहले हम निकालते हैं ग्रेडियंट ऑफ ab, y2 माइनस 5 दैट विल बी 0 माइनस 3 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इट्स 5 और हम निकालेंगे ग्रेडियंट ऑफ b एंड c, 5 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 इज 3। तो ग्रेडियंट ऑफ ए बी आपके पास क्या आ गया, दैट इज इक्वल्स टू -3 डिवाइडेड बाय 5। ग्रेडियंट ऑफ बी सी आपके पास क्या आ गया, इट इज इक्वल्स टू 5/3। अगर परपेंडिकुलर है तो कंडीशन क्या होती है हमारे पास, m1 टाइम्स m2 इक्वल्स टू -1। वैल्यू प्लेस करते हैं तो आपके पास आ जाएगा -3/5 टाइम्स 5/3 इज इक्वल्स टू -1। सब कैंसिल हो जाएगा, -1 इक्वल्स टू -1। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट वन, स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। डी क्योंकि आपके पास सेंटर है तो हम ए और सी का मिड पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। सो मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। सो दैट विल बी -2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2
and 3 plus 5 divided by 2. 6 minus 2 4 divided by 2 2. 5 plus 3 8 divided by 2, ये आ जाएगा 4. फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल. तो पहले आपको चाहिए रेडियस ना. तो मेरे पास सेंटर तो D आ गया. अब मैं D से C तक का डिस्टेंस या D से मैं A तक का डिस्टेंस निकाल सकता हूँ. तो लेट मी फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम D टू C. ऑलराइट, इट इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1. D क्या है मेरे पास? 2. So that will be 2 minus 6 whole square plus 4 minus 5 whole square. 2 minus 6 minus 4 का square 16 plus 4 minus 5 1 का square 1. So that is equals to under root 17. ये आ जाएगा आपके पास DC. Alright. सर्कल की इक्वेशन क्या है मेरे पास? इट्स x माइनस a होल स्क्वायर, x माइनस h इनफेक्ट कर लेते हैं हम इसको, x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर. आपके पास सेंटर के पॉइंट्स आ चुके हैं D वाले. तो x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस के 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस इज 17. रूट 17 का स्क्वायर 17 हो जाएगा. ये आपका आंसर है. नेक्स्ट पार्ट. The point E lies on the circumference of the circle such that B is a diameter. Find the equation of the tangent to the circle at E. A, B, C के पॉइंट्स हमें मालूम थे तो मैंने एक रफली स्केच कर लिया है. ये A, B, C के पॉइंट सर्कमफेरेंस पे. ठीक है, यहाँ पर बात की गई है पॉइंट E की, और पॉइंट E लाई कर रहा है सर्कमफेरेंस पर, और ऐसे लाई कर रहा है कि B और D जो है मेरे पास, B और E, ये मेरे पास डायमीटर बन जाएगा. इसका मतलब सेंटर पॉइंट जो D का है वो यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा. ठीक है, आपको ये फाइंड करना है कि अगर इस E पॉइंट से एक टेंजेंट पास होगा तो उस टेंजेंट की आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. ऑलराइट, ठीक है. अब आप क्या क्या निकाल सकते हो यहाँ पर? आपके पास सबसे पहली चीज ग्रेडियंट आ सकता है. ठीक है, क्योंकि आपके पास सेंटर के पॉइंट्स मौजूद हैं. मेरे पास सेंटर D मौजूद है 2 4, B मेरे पास आ गया 3,0. तो मैं ग्रेडियंट निकाल लेता हूँ. ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ B एंड D इज इक्वल्स टू y2 minus y1 0 minus 4, x2 minus x1 3 minus 2. So that will be equals to minus 4 divided by 1 minus 4 आ जाएगा. ये आ जाएगा ग्रेडियंट ऑफ B. अब अगर आपके पास इस लाइन का ग्रेडियंट -4 है तो जो टेंजेंट की लाइन है इसका ग्रेडियंट हो जाएगा आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 4. ऑलराइट, किस तरह आया? सिंपल आपने किया m1 m2 इक्वल्स टू -1, परपेंडिकुलर की कंडीशन अप्लाई कर दी तो आपको m2 मिल जाएगा जो आपके काम का है, दैट इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 4. दूसरी चीज जो हमें चाहिए वो है E के पॉइंट्स. तो मैंने कहा लेट सपोज E के पॉइंट्स हैं मेरे पास xy, ये चीज मैं निकालूंगा मिड पॉइंट से. सो E कोऑर्डिनेट्स हैं x, y. ये कहाँ पे लाई कर रहा है? सर्कमफेरेंस पे. तो मैं D से स्टार्ट करूंगा. ऑलराइट, D इज इक्वल्स टू, D मिड पॉइंट किसका है? B और E का. तो मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2. D के पॉइंट्स मुझे पता है, दैट इज 2 एंड 4. x1 मैं ले लेता हूँ B को, तो ये आ रहेगा 3 प्लस x डिवाइडेड बाई 2 कॉमा 0 प्लस y डिवाइडेड बाई 2. इसके बाद हम कंपेयर करेंगे x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट से कंपेयर करेंगे. सो व्हाट वी गॉट, 3 is equals to 2 equal to 3 plus x divided by 2, 2 2s are 4, minus 3 is equals to x and x is equals to 1. इसी तरह हम y को इक्वेट करेंगे तो y के लिए मैं 4 को इस पूरे से इक्वेट कर रहा हूँ. ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरे पास 4 is equals to y divided by 2, y is equals to 8. तो मेरे पास E के पॉइंट्स आ चुके हैं, दैट इज 1,8. इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1. ये आ रहेगा y माइनस y1 इज 8. ग्रेडियंट अब निकाल चुके हैं, 1 डिवाइडेड बाय 4 x माइनस x1. 4y माइनस 32 इज इक्वल्स टू x माइनस 1 और 4y इज इक्वल्स टू x प्लस 31. ये आपका आंसर आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का. क्वेश्चन नंबर 11. The diagram shows part of the curve with equation y equals to x 1 upon 2 plus k square x minus 1 upon 2, where k is the positive constant. Find the coordinates of the minimum point of the curve. Give your answer in terms of k. Minimum point का मतलब stationary point. कंडीशन क्या हो गई? dy over dx को आपने 0 से इक्वेट करना है. ऑलराइट, सबसे पहले हम y को लिखते हैं. y क्या है? y is equals to x पावर 1 upon 2 plus k स्क्वायर x पावर माइनस 1 upon 2. डेरिवेट करते हैं. dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, पहले पावर लिखो फिर पावर में से 1 माइनस करो, तो ये आ रहेगा -1 अपॉन 2 प्लस के स्क्वायर
एक्स को डेरिवेट करेंगे, पहले पावर और फिर पावर में से 1 माइनस किया तो ये आ रहेगा -3/2। ऑलराइट, डेरिवेट कर दिया। अब डेरिवेट को हमने 0 से इक्वेट करना है, तो ये बनेगा आपके पास 1/2 एक्स टू द पावर 1/2 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, के स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एक्स टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 2। ऑलराइट, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस वाले को हम शिफ्ट करते हैं, प्लस हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा के स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एक्स टू द पावर 1/2 इज इक्वल्स टू 3/2 एक्स टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 2 एक्स टू द पावर 1/2। 2 और 2 कैंसिल हो गया, के स्क्वायर एक्स पावर 3/2 शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आ रहेगा एक्स पावर 3/2, और ये 1/2 जब ऊपर जाएगा तो दैट विल बी -1/2। ऑलराइट, सो व्हाट यू गॉट, के स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर आपने एक्स की पावर का एलसीएम लिया, 2 आ जाएगा, ये बचेगा 3 - 1, सो के स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स। ये आपका आंसर आ गया एक्स इन टर्म्स ऑफ के। आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने को कहा है मिनिमम के, तो आपके पास एक्स का आंसर तो आ गया, वाई निकालना है। वाई की इक्वेशन क्या है, वाई इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 1/2 प्लस के स्क्वायर एंड एक्स टू द पावर -1/2। जहां पर भी x है वहां पर हम k प्लेस कर देंगे, तो y इज इक्वल्स टू के स्क्वायर टू द पावर 1/2 प्लस के स्क्वायर टू द पावर -1/2। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 और 2 कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया, y इज इक्वल्स टू k प्लस ये क्या बच गया आपके पास, ये बचा के स्क्वायर डिवाइडेड बाय के, क्योंकि पावर मेरे पास -1 रह गई तो वो डिवाइड में जाके +1 हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया, तो आपके पास y का आंसर क्या आ गया 2k। तो कोऑर्डिनेट की टर्म में आंसर लिखना है तो आप लिखोगे इसको के स्क्वायर 2k, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट, द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर x इज इक्वल्स टू 4k स्क्वायर इंटरसेक्ट्स द y एक्सिस एट p। कौन इंटरसेक्ट कर रहा है, टेंजेंट इंटरसेक्ट कर रहा है। सबसे पहली चीज क्या करनी है, आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे y माइनस y1 इज इक्वल्स टू mx माइनस x1। ये हमारी इक्वेशन हो गई बेटा। यहाँ पर हम सबसे पहले वर्किंग करेंगे ग्रेडियंट की। ग्रेडियंट क्या होता है, dy/dx। ये dy/dx हम पहले पार्ट में निकाल चुके हैं, ठीक है। हमने सिंपल ये करना है कि जहां पर भी x होगा वहां पर हमने 4k स्क्वायर प्लेस करना है, तो हमारे पास ग्रेडियंट आ जाएगा, ठीक है। तो मैं प्लेस कर रहा हूँ 1/2, जहां पर भी x होगा वहां पर 4k स्क्वायर, ये आ जाएगा 4k स्क्वायर होल पावर अपनी जगह -1/2 रहेगी, प्लस माइनस माइनस k स्क्वायर यहाँ भी आएगा, और ये हो जाएगा 1/2 x की जगह 4k स्क्वायर और -3 डिवाइडेड बाई 2 पावर उसकी रहेगी, ये आ गया 4k स्क्वायर। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है बेटा, तो ये 4k स्क्वायर को पहले सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, 4k स्क्वायर को अगर मैं ऐसे लिखूं 2k और उसका होल स्क्वायर एंड देन पावर -1/2, कोई फर्क नहीं पड़ा, -k स्क्वायर 1/2 एज इट इज। 4k को लिखूंगा क्या, 2k इसका होल स्क्वायर एंड पावर -3 डिवाइडेड बाई 2। ऐसे लिखने का फायदा ये हुआ कि अब हम 2 से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, पहले नहीं कर सकते थे। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/2, 2k की पावर -1 हो जाएगा 1/2k। ऑलराइट, माइनस k स्क्वायर अपनी जगह, यहाँ भी आपके पास 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ गया, 2k की पावर -3, तो ये जब डिवाइड में जाएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, दैट मीन्स 8k3, ये बन गया मेरे पास, ठीक है ना। ये सब क्या आ रहा है, ये सब मेरे पास ग्रेडियंट आ रहा है। अब ग्रेडियंट क्या आ जाएगा मेरे पास, दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 4k माइनस k स्क्वायर और k क्यूब से कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा -1 डिवाइडेड बाय 2 8 आर 16k। इसका अगर हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा हमारे पास 16k, तो ये आएगा मेरे पास 4 - 1 लीड्स टू 3 डिवाइडेड बाय 16k। ये आपके पास आ गया आपका ग्रेडियंट। अब आपको चाहिए y1 की वैल्यू। ऑलराइट, अब y1 के लिए क्या करेंगे, क्योंकि मैंने एक्सप्लेनेशन ज़्यादा कर दी, जगह कम पड़ रही है। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास x की वैल्यू है 4k स्क्वायर, मेरे पास इक्वेशन मौजूद है, तो मुझे y निकालने के लिए x की जगह 4k स्क्वायर को यहाँ पर प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, y इज इक्वल्स टू x की पावर 1/2 प्लस k स्क्वायर x की पावर -1/2। अच्छा, x बराबर है मेरे पास 4k स्क्वायर, ठीक है। 4k स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं 2k का होल स्क्वायर, तो यहाँ भी 2k का होल स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ भी x की जगह
2k एंड इसका होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग इसको, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा आपके पास, ये आपके पास बच गया 2k प्लस k स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2k। k और k कैंसिल हो गया, 2k प्लस k डिवाइडेड बाई 2, एलसीएम लिया 2 2 4 प्लस 1 5k डिवाइडेड बाई 2, ये आपके पास आ गया y1। ऑलराइट, तो आपके पास कोऑर्डिनेट आ गया। जब x आपके पास 4k स्क्वायर है तो y आपके पास 5k डिवाइडेड बाई 2 है। अब जो इक्वेशन मैंने आपको शुरू में बताई थी y माइनस y1, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, तो ये आपके पास इक्वेशन क्या आएगी, y माइनस y1 कितना आया 5k डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू m, निकाल चुके हैं हम लोग 3 डिवाइडेड बाई 16k, x माइनस x1 क्या है आपके पास 4k स्क्वायर। जहां पर आपका पॉइंट P लाई कर रहा है वो y एक्सिस पर है, तो आपने क्या करना है, आपने x की जगह 0 प्लेस करना है, ठीक है। तो क्या बना, y माइनस 5k ओवर 2 इज इक्वल्स टू 3 ओवर 16k टाइम्स माइनस 4k स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लिया आपने, k स्क्वायर से k कैंसिल हो गया, ठीक है, और 4 1s आर 4, 4 4s आर 16, तो y इज इक्वल्स टू, राइट पे क्या बच गया आपके पास, माइनस 3k डिवाइडेड बाय 4, ये माइनस 5k अपॉन 2 जब राइट पे जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 5k डिवाइडेड बाय 2। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम इसका आ जाएगा मेरे पास 4, दैट विल बी माइनस 3k प्लस 5 2s आर 10k विच इज इक्वल्स टू 7k डिवाइडेड बाय 4। ये आपके पास y का आंसर आ गया। ऑलराइट, पार्ट सी, the shaded region is bounded by the curve the x-axis and the line x is equals to 9 over 4k square and x equals to 4k square. Find the area of the shaded region in terms of k. एरिया के लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कर्व की इक्वेशन क्या है, y is equals to x to the power 1 upon 2 प्लस k स्क्वायर x to the power माइनस 1 upon 2। मैं दोनों साइड पर इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा। इंटीग्रल ऑफ y क्या बन जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा एरिया इज इक्वल्स टू x पावर 1 अपॉन 2 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, दैट विल बी x टू द पावर 1 अपॉन 2 प्लस 1, इट्स 3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस k स्क्वायर अपनी जगह, x की पावर माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1, इट्स 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 2। लिमिट्स आपके पास क्या हैं, लिमिट्स आपको दी हुई हैं, 9 अपॉन 4 k स्क्वायर से लेके जाना है 4k स्क्वायर तक। ऑलराइट, सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको हम लोग। अब ये आपके पास आ रहेगा 2 डिवाइडेड बाई 3 x टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2k स्क्वायर x टू द पावर 1 अपॉन 2, और लिमिट्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, 9 अपॉन 4k स्क्वायर से लेके 4k स्क्वायर तक। तो हमारे पास लिमिट्स कैसे अप्लाई करते हैं, पहले अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट। तो मैं एक काम ये करता हूँ, जहाँ पर 4k स्क्वायर है ये बेसिकली मेरे पास है 2k का होल स्क्वायर, और जहाँ पर 9 ओवर 4k स्क्वायर है ये मेरे पास है बराबर है 3 डिवाइडेड बाई 2k एंड इट्स होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैं अब इसकी जगह इसको प्लेस कर सकता हूँ ताकि मुझे सॉल्व करने में आसानी हो, ठीक है बेटा। अपर लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, अपर लिमिट इज व्हाट, 2 डिवाइडेड बाई 3 x टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2k स्क्वायर x टू द पावर 1 अपॉन 2। ये पूरी अपर लिमिट आ गई, बीच में साइन आएगा मेरे पास माइनस का। अब लोअर लिमिट सेम एक्सप्रेशन आएगा, 2 ओवर 3 x टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2k स्क्वायर x टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 2। अब मेरे पास जो x की वैल्यू आई थी वो 2k होल स्क्वायर थी अपर लिमिट के लिए, तो मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ 2k होल स्क्वायर, 2k होल स्क्वायर, और लोअर लिमिट पे क्या आ जाएगा मेरे पास, 3 अपॉन 2k होल स्क्वायर, 3 अपॉन 2k एंड इट्स होल स्क्वायर, 3 अपॉन 2k एंड इट्स होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर से फ़ायदा ये हुआ कि हमारी पावर्स कैंसिल हो गई, ये फ़ायदा हुआ इसका, ठीक है, होल स्क्वायर से कि सारी पावर्स कैंसिल हो गई। अब सिंप्लीफाई करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अपर लिमिट सॉल्व कर रहे हैं 2 अपॉन 3, अब 2 का क्यूब क्या आ जाएगा मेरे पास 8 और k का क्यूब k क्यूब प्लस 2 2s आर 4 k क्यूब माइनस 2 अपॉन 3
इनटू 3/2 k क्यूब, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2/3, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8 एंड इट्स k क्यूब, माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी 3k क्यूब। ऑलराइट, अब आपके पास 4k क्यूब और 3k क्यूब, इनको आपने सिंप्लीफाई किया, 4 माइनस 3 दैट विल बी k क्यूब ओनली। ऑलराइट, अब जो फ्रैक्शन वाले बचे उसमें कौन कौन है आपके पास, 2 8s are 16, k क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस, ये तो सिंप्लीफाई करेंगे पहले, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 3 1s are 3, 3 9s are 27, so that will be 9/4 k क्यूब। ऑलराइट, अब हम इसका यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 12, सो इट विल बी 12 k क्यूब प्लस 3 4s are 64 k क्यूब माइनस 4 3s are and 3 9s are 27 k क्यूब। इसको सिंप्लीफाई किया आपने, यू विल गेट 49 k क्यूब डिवाइडेड बाय 12 एंड दैट इज योर फाइनल आंसर।